Hello, hi friends. I'm your English mentor Rahul Raj. I've been telling you again and again that English is a very important subject, and a person having a knowledge of English will have not to worry of earning a livelihood at least. So friends, today going deep in the subject, we are going to study about clauses. What are clauses? So let's have a look at the board, friends. Clause. What is a clause? A clause is a group of words which contains a subject and a verb. Subject plus verb is equal to clause. एक क्लॉज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंटेन करता है सिंपली एक सब्जेक्ट और एक वर्ब. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. There are main three types of there are main three types of clauses. First one is independent clause, that is main clause. Second one is dependent clause, that is subordinate clause. And third one is coordinate clause. So friends, there are three types of clauses. Independent clause, which is called also main clause. Second one is dependent clause, which is also called subordinate clause. And the third one is coordinate clause. And a clause is a group of words which contains a subject and a verb. So friends, let me not rub the black whiteboard and let's focus on the screen to study about the clauses in detail. चेयर ले लो, चेयर ले लो, चेयर. So friends, here we are seeing clause. What definition of clause is? A clause is a group of words that contains a subject and a verb that have a relationship. This relationship is crucial. A clause conveys information about what that subject is or is doing. एक क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंटेन करता है एक वर्ब और एक सब्जेक्ट जिसमें एक रिलेशनशिप क्रूशियली होना चाहिए. एक रिलेशनशिप का होना बिल्कुल जरूरी है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट द relationship between the subject and the verb must be established. What is the relationship? How the verb is related with the subject? A clause conveys information about what that subject is or is doing, rather than simply being a grouping of words. A sentence can have just one clause, or in a complex sentence can have multiple clauses. When it comes to expressing a complete thought, When it comes to expressing a complete thought, a clause falls between a phrase and a verb. A clause falls between a phrase and a sentence. एक सेंटेंस में क्लॉज और फ्रेज दोनों होगा. क्लॉज फॉल्स बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ फ्रेज. एक सेंटेंस भी होना चाहिए और एक फ्रेज भी होना चाहिए, तब जाकर के क्लॉज का मीनिंग कंप्लीट होता है. एक क्लॉज के साथ हमेशा एक फ्रेज आएगा. हम लोग देखें स्क्रीन पे फ्रेंड, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके. मैं आपको दिखा रहा हूं डेफिनेशन ऑफ क्लॉज. And as I told you before, there are three types of clause. Independent clause, main clause. It is a complete sentence in its own and carries a defined meaning. ये एक अपने आप में complete sentence होता है independent clause. For example, he was eating an apple. He is the subject and eating is a verb. He was eating an apple is a independent clause because it is a full complete sentence in its own and it carries a meaning. It carries a defined meaning. Ram was playing a piano.
Here Ram is the subject and playing is the verb, and it is an indefinite clause because it is portraying a meaning. It is in itself a complete sentence and it is giving you a telling you about a complete meaning. What is phrase? Phrase is eating an apple, and clause is he was eating an apple. It is a complete sentence. He was eating an apple is a indefinite clause. Eating an apple is a phrase. He was eating an apple is a complete sentence in which he was eating is a clause. He is a subject and eating is a verb. Likewise, playing a piano is a phrase. Ram was playing a piano is a clause, is an indefinite clause and a complete sentence also. Mews so loudly is a phrase and the cat mews so loudly is a clause. Here cat is a subject, mews is the verb. Mews so loudly is a फ्रेज और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है. इसे किसी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या किसी और फ्रेज की जरूरत नहीं होती कोई मीनिंग या कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने में. डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस and doesn't convey full meaning about what the clause wants to say. Dependent clauses don't actually show the clear relationship between the subject. Dependent clause में सिर्फ एक verb होता है, group of words होता है जो कि एक full sentence नहीं होता और एक complete meaning convey नहीं करता है. हमें एक complete relationship between the subject and the verb नहीं बताता है. For example, he broke. He broke is an independent clause. He is a subject and broke is a verb, but it is a dependent clause. It is dependent upon other group of words, other phrases or some other clause. It is a clause, but it is a dependent clause. It is dependent on some other independent clause. Ram plays is a dependent clause. It is again dependent upon an independent clause. Although he sings well is a dependent clause and it is dependent upon one another independent clause to complete the sentence and complete a meaning. The mouse was hiding. The mouse was hiding एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंडेंट है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए और एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए. The mouse that was hiding, यहाँ माउस एक वर्ब एक सब्जेक्ट है और हाइडिंग एक वर्ब है, लेकिन इस क्लॉज से हमें कंप्लीट मीनिंग पता नहीं चल रहा है ये कहना क्या चाह रहा है राइटर. उसी तरह से अनदर डिपेंडेंट क्लॉज है द थीफ हु स्टोल. चोर जिसने चोरी की, क्या चोरी की, क्या क्या रिलेशन था थीफ का उसके वर्ब से, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं बता रहा, इसीलिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि ये एक अदर इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है. या तो इस पे कुछ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए, एक डिपेंडेंट क्लॉज में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए या कुछ फ्रेज चाहिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए और सेंटेंस को एक पूरा मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए. जैसे हम लोग देखते हैं टू टर्न दीज डिपेंडेंट क्लॉजेज इनटू फुल सेंटेंस वी नीड टू कंबाइन देम विद इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अनदर क्लॉज और फ्रेज. इसको फ्रेंड्स आप लोग नोट डाउन कर लें. जैसे राम प्लेज इन डिपेंडेंट क्लॉज. द पियानो विच इज हिज हॉबी, इट इज अनदर क्लॉज. राम इज सब्जेक्ट, प्लेज इज अ वर्ब. The piano is a subject and hobby is a verb. Here there are two clauses. Ram plays is a clause, the piano which is his hobby is another clause, and they both will
when the both clauses are combined, it completes a sentence and completes a meaning. And the third form of the clause is coordinate clause. Coordinate clause is when two clauses combine together to form a sentence, that is called a coordinate clause. जब दो clause जोड़ते हैं एक साथ और एक सेंटेंस बनाते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस, तब उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है जहां पर दो क्लॉज या दो से ज्यादा क्लॉज को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया जाता है. यह हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज. ये थर्ड फॉर्म ऑफ क्लॉज है कोऑर्डिनेट क्लॉज. व्हेन वी कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और मोर टू कंप्लीट अ सेंटेंस. सिंपल में, शॉर्ट में डेफिनेशन यही है कोऑर्डिनेट क्लॉज का. जब हम लोग दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को या दो से ज्यादा क्लॉजेस को, इंडिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या दो डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. तो हम लोग अब देख रहे थे, हम लोगों ने देखा डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये सारे कोऑर्डिनेट क्लॉज के भी एग्जांपल्स है. और ये अ मैंगो फेल इज डिपेंडेंट क्लॉज, एंड टू कंप्लीट द सेंटेंस we are combining it with another clause. Down the tree and got rotten. Down the tree is a phrase. A mango fell down the tree and got rotten. Here there are two clauses. A mango fell down the tree and got rotten. Tree is a verb, tree is a subject, and rotten is a verb. Mango is a subject and fell is a verb. So here there are two pair of subjects and two pair of verbs. Likewise, इससे भी ज्यादा लंबे सेंटेंस बन सकते हैं जहां तीन वर्ब हो और तीन सब्जेक्ट हो, तो इससे भी ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है. दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, जब दो या दो से ज्यादा क्लॉज को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं. अनदर एग्जांपल ऑफ अ independent clause. He arrived when I was going out of the house. When I grow up is an dependent clause, and I want to be a doctor is a independent clause. I want to be a doctor अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, और ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है. दो क्लॉज जोड़ करके एक कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं. तो जब दो क्लॉज मिल करके एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है. और इंडिपेंडेंट क्लॉज में उन्होंने देखा कि एक मेन क्लॉज, जिसको मेन क्लॉज कहते हैं, ये कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में होता है एंड कैरीज अ डिफाइंड मीनिंग. इंडिपेंडेंट क्लॉज बस एक वर्ब और एक सब्जेक्ट इसमें होगा और एक शॉर्ट सेंटेंस होगा. और डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक वर्ब होगा और एक सब्जेक्ट होगा. कोऑर्डिनेट क्लॉज जब हम लोग दो फ्रेज को ज्वाइन करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, तो उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. ये सारे एग्जांपल है डिपेंडेंट क्लॉजेस के. ये एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस है जो कि एक वर्ब और एक नाउन तो कैरी कर रहा है, लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. और हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज को फुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें जरूरत होती है इनको कंबाइन करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या अनदर डिपेंडेंट क्लॉज, अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अनदर क्लॉज और फ्रेज. जैसे ये डिपेंडेंट क्लॉज था राम प्लेज, इसको हमने अदर क्लॉज से जोड़ दिया, द पियानो विच इज हिज हॉबी, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया. अ बेगर दैट कम्स, ये हमने पहले एग्जांपल्स के ऊपर देखा था. अ बेगर दैट कम्स इज डिपेंडेंट क्लॉज
फिर एक और क्लॉज हम लोग उस पर जोड़ते हैं, आस्क फॉर मनी फ्रॉम मी। आस्क इज अ वर्ब, money is me is subject and ask is a verb, and here comes is verb and beggar is subject। तो दो क्लॉज यहाँ जोड़ रहा है जिसमें दो वर्ब है, दो सब्जेक्ट है, तो ये मिलके कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं और इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज भी हम लोग कह सकते हैं। Another example is the thief who stole, एक क्लॉज हुआ, my car was arrested, the thief who stole my car was arrested। ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ जिसमें दो क्लॉज जोड़ रहे हैं, द थीफ हू स्टोल एंड माई कार वॉज अरेस्टेड। ये दो क्लॉज है जोड़ करके एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं। एक और एग्जांपल है, ऑल्दो ही सिंग्स वेल ही हेट्स क्लासिकल म्यूजिक। ऑल्दो ही सिंग्स वेल इज अ डिपेंडेंट क्लॉज और इसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़ रहा है यहाँ, ही हेट्स क्लासिकल म्यूजिक। ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ही हेट्स क्लासिकल म्यूजिक, और इसमें एक क्लॉज भी है, ही एक सब्जेक्ट है और हेट्स एक वर्ब है, तो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इसमें दो क्लॉज मिल करके एक फुल सेंटेंस बना रहे हैं, ही सिंग्स वेल, इसमें एक फ्रेज है। अ मैंगो फेल एक डिपेंडेंट क्लॉज है, डाउन द ट्री एंड गॉट रॉटन, ये फिर एक डाउन द ट्री एंड गॉट रॉटन, ये अनदर क्लॉज है। तो यहाँ दो क्लॉज मिल करके एक सेंटेंस बना रहे हैं, अ मैंगो फेल डाउन द ट्री एंड गॉट रॉटन, एंड फेल डाउन द ट्री इज अ फ्रेज। अनदर सेंटेंस हम लोग देखते हैं, वी सर्च फॉर एक डिपेंडेंट क्लॉज है, द माउस दैट वाज हाइडिंग, द माउस दैट वाज हाइडिंग एक और डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, द माउस दैट वाज हाइडिंग, मतलब एक माउस जो छुपा हुआ था, लेकिन फिर भी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज ही होगा क्योंकि ये फुल रिलेशनशिप नहीं माउस के साथ बता रहा है। तो ये एक क्लॉज और ये पार्ट दूसरा क्लॉज, दो क्लॉज मिलकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं। इसमें माउस दैट वाज हाइडिंग इज अ फ्रेज, ही अराइव्ड इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, व्हेन आई वाज गोइंग आउट ऑफ द हाउस इज अनदर, व्हेन आई वाज गोइंग आउट ऑफ द हाउस इज अनदर क्लॉज, दो क्लॉज मिलकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं, गोइंग आउट ऑफ द हाउस इज अ फ्रेज। When I grow up is a dependent clause, I want to be a doctor, I want to be a doctor is an independent clause। ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग फुल सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। तो यहाँ एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलकर के एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं, कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा तीन टाइप के क्लॉजेज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, एंड देयर आर अदर 7 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। फर्स्ट वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, आप लोग स्क्रीन से फ्रेंड नोट कर लें, स्क्रीन पॉज करें। सेकेंड वन इज एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड वन इज एडवर्बियल क्लॉज, फोर्थ वन इज नाउन क्लॉज, fifth one is relative clause, and sixth one is conditional clause, and seventh is infinitive clause। तो इसके बारे में हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो लेट्स कम टू द बोर्ड अगेन। तो फ्रेंड्स हमने देखा क्लॉज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, there are main 3 types, independent clause, dependent clause and coordinate clause। Independent clause is also called as main clause, dependent clause is also called as subordinate clause, and the third one is coordinate clause। independent clause एक complete sentence होता है और इसमें एक verb और एक subject होता है, और independent clause एक complete sentence होता है। dependent clause एक group of word होता है और incomplete sentence होता है जिसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज एक दूसरे क्लॉज पे, दूसरे फ्रेज पे, दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे डिपेंड करता है एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। और फ्रेंड्स कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है जब हम लोग दो क्लॉजेस को या दो से ज्यादा क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं
और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और देयर आर 7 other types of clause. First one is subordinate clause, second one is adjective clause, third one is adverbial clause, fourth one is noun clause, fifth one is relative clause, sixth one is conditional clause, seventh one is infinitive clause. तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने क्लॉज के बारे में पढ़ लिया। हम लोगों ने जाना कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज एक इनकम्प्लीट या कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। एक कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है उसमें 2 वर्ब या 2 सब्जेक्ट या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ले उसमें हम लोग 2-3 वर्ब 2-3 क्लॉज को भी यूज करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। और यहां 2 क्लॉजेस जब ज्वाइन होंगे तो उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। सो फ्रेंड्स दैट वाज टुडेज टॉपिक clauses. So friends, I hope you would be doing well. You all would be doing well. So friends, let me rub the board. आप लोगों को फ्रेंड्स अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा मेरे इंग्लिश ग्रामर का तो आप लोग प्लीज मेरे इंग्लिश चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं और भी कुछ पढ़ना, इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन हो, इसमें आपको कुछ डाउट्स हो, या आप चाहते हैं मुझे कोई और टॉपिक पढ़ाना या कहीं पर भी डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और प्लीज फ्रेंड सपोर्ट मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। The name of my YouTube channel is English Made Easy by Rahul। तो फ्रेंड्स प्लीज अभी जाकर के मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड स्टे वेल, स्टे फाइन, डू स्टडी वेल एंड प्रिपेयर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इफ यू अभी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो गया है, इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं और इंग्लिश ग्रामर हमें सीखने के लिए, इंग्लिश ग्रामर अगर हम लोगों ने सीख लिया तो समझ लीजिए इंग्लिश पे पूरा कमांड हो गया। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूँ। मैं सारे कंटेंट्स इंग्लिश ग्रामर के धीरे धीरे ला करके आपको अपने चैनल पे बता दूंगा। तो मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें फ्रेंड्स, जिससे कि आपको मैं जब भी न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और नए टॉपिक के बारे में आप पढ़ पाएं। और फ्रेंड्स मैं आपको पूरा इंग्लिश का बिल्कुल पूरा बेसिक पूरा ग्रामर जो भी है पूरा डिटेल में कवर करवा दूंगा कि आपको कोई डाउट ना हो। So friends, trust me and it's my guarantee that I will teach you English and you will start speaking and writing English very fluently. So friends, bye for now. Thank you.